یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 416. 31st of December 1998, wise in Hyderabad Jamaat Khana in Mubarak Colony Jamaat Khana. Yara Shah Jadi Dari Srevar Juga Yashmo Mane Ke Jini Ladharui Bez Maulana Azhar Imam pe salawat padho dindaron ہر جمعرات کو ہم لوگ چوگڑیاں بولتے ہیں اور پھر صدر دن ماں باپ کے زمانے سے بولتے ہیں. ایسے 5 چوگڑیاں ہیں. چوگڑیاں کیا ہے؟ اس کو کیوں چوگڑیاں کہتے ہیں؟ کو گینان کیوں نہیں کہتے؟ ہندوستان کے اندر اور جہاں ہندوستانی رہتے ہیں وہاں بھی بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو مہورت نکالتے ہیں جوتشی کے پاس جا کے کہ ہمیں ایسا اچھا وقت دے جس کو ہم کہتے ہیں ساد سین عین تال، کہ اس موقع کے اوپر ہم اپنے بچے کی شادی کریں تاکہ اس میں کوئی نحس چیز نہ آئے. مکان بنانا ہے، بنیاد رکھنے کے لیے ہم کسی ایسے ہی آدمی سے پوچھتے ہیں کون سا وقت اچھا ہے. آگے کے زمانے کے اندر بادشاہ ہوتے تھے اور جو بادشاہ ہوتے تھے وہ صبح ان کے محل کے اوپر ایک بہت بڑا ڈرم ہوتا تھا جس کو نوبت کہتے ہیں. تو نوبت بجتی تھی اور اسی طرح سے شام کے وقت نوبت بجتی تھی. یہ جو 2 وقت تھے نوبت بجانے کے، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ بادشاہ حیات ہے، حکومت قائم ہے اور کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا. اسی طرح سے شام کو بھی نوبت بجتی تھی. بہت بڑے بڑے فقیر و درویشوں کے مقبروں کے اوپر بھی نوبت بجتی ہے. یہ جو نوبت ہے یہ اسی وقت بجتی ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اور آدھے آسمان پہ اندھیرا ہوتا ہے، آدھے آسمان پہ روشنی ہوتی ہے. اسی طرح شام کو بھی. تو یہ وقت جو تھا نوبت بجنے کا وہ بادشاہ کی حکومت کا اعلان ہے کہ حکومت حاضر ہے. یہی وہ موقع تھا کہ جس کو ہم چوگڑیا کہتے ہیں، یعنی صبح کا چوگڑیا، شام کا چوگڑیا، کہ جب بادشاہ کی حکومت کی نوبت بجتی ہے. اور وہ وقت کہ جب اچھا نیک وقت ہوتا ہے اور اس وقت ہم اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں، کو بنیاد رکھتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کو چوگڑیا کہتے ہیں. ہمارے ہاں گرپی صدر دن ماں باپ نے 5 چوگڑیے شام کے اور 24 چوگڑیے صبح کے بنائے. صبح کے 24 چوگڑیے. ان چوگڑیوں میں کیا ہے؟ ان چوگڑیوں میں امام کی صفت ہے. یہ چوگڑیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت امام کی امامت قائم ہے، دائم ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، اس کی مدد مانگتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں رہیں.
यारा घर रिखियन दे बधाई। मोमनों के घर के अंदर और उनके दिलों के अंदर बधाई यानी कि मुबारकियां हों। और हर जुमेरात को क्यों? सिर्फ जुमे ही रात को ये कहा गया है? हाँ, सुबह के चौगड़िया तो ये है कि सुबह उगती है यानी सुबह बेदार होती है, रात चली जाती है, दिन निकलता है, उसके पहले हम अपने मौला की तारीफ करते हैं। ऐसा ही शाम के वक्त जब शाम होती है तो अभी तो जमाना बदल गया, बहुत सी चीजें हमने छोड़ दी, आरती बोली जाती थी। आरती का मतलब तारीफ। आरती कहते हैं तारीफ को, या जिस तरह हम अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं खुदा की बड़ाई की जाए, ग्लोरीफाई किया जाए। और ग्लोरिफिकेशन में क्या है? सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह जो है वो हर ऐब से पाक है, उसमें कोई ऐब नहीं। ये उसकी ग्लोरिफिकेशन है, उसकी बड़ाई है। और खुदा ताला ने हमें कहा है कि तुम उसकी दोपहर के वक्त इसी तरह से बड़ाई करो। ये बड़ाई करने का मकसद यह है कि दोपहर को एक तस्वीर निकालो, सुभान अल्लाह, ऐ खुदाया तू पाक है, तेरे अंदर कोई बुराई नहीं, तेरे अंदर कोई ऐब नहीं, तेरे अंदर कोई खामी नहीं। और उसकी ये बड़ाई करना खुद हमारे दिलों के अंदर उसकी अजमत को पैदा करना है। अल्लाह फरमाया कि जब ये मगरिब का वक्त आए उसके पहले, जिसको हम असर की नमाज कहते हैं, उस वक्त तुम उसकी हम्द करो, तारीफ करो। तो 4-5 बजे के दरमियान हमको कहा गया कि तस्बीह पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। असल में खुदा का भी ये हुक्म था कि दोपहर को सुभान अल्लाह कहो, असर को अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और बाकी तो सुबह की नमाज, मगरिब की और अशा की नमाज है। मुर्शिद न होने की वजह से, हिदायत न मिली इस वजह से, उन लोगों ने कि जो पुराने जमाने के अंदर बहुत ज्यादा आलिम फाजिल नहीं भी थे, रसूल अकरम ने उनको कहा कि दोपहर को खुदा ताला को याद करो, जिक्र करो। तो उन्होंने नमाज पढ़ी, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि नमाज भी खुदा ताला के जिक्र में है। असर के वक्त उन्होंने नमाज पढ़ी, क्योंकि नमाज पढ़ना खुदा के जिक्र में है। रसूल अकरम बैठे होंगे अंदर और बादल जोर जोर से गरजने लगे तो नबी खड़े हो जाते थे और 1 रकात या 2 रकात नमाज पढ़ लेते थे। अगर बिजली चमक रही है तो नबी खड़े हो जाते थे, 1 या 2 रकात नमाज पढ़ लेते थे। अरब उस जमाने के अंदर बिल्कुल जाहिल थे, कोई पढ़ा लिखा शख्स था। उनको इस मेंटल कंडीशन के अंदर एक ही चीज सिखाई कि खुदा ताला के अदब में खड़े हो जाओ, उसकी तारीफ करो। इसको नमाज की शक्ल दी गई। अरबी जबान में लफ्ज नमाज नहीं है, नमाज तो सिर्फ फारसी जबान का लफ्ज है, और नमाज का लफ्ज इस्लामी लफ्ज नहीं, मुसलमानों को खबर नहीं है। और मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि बड़े बड़े उलमा भी जो हैं वो भी इसको नमाज कहते हैं। नमाज ईरान के जो आतिश परस्त थे, जैसे कि पारसी लोग आग की पूजा करते हैं, उनकी जबान के अंदर इबादत को नमाज कहा गया। चूंकि ईरान फतह हो गया और हजारों लाखों मुसलमान बने पारसियों में से, और आतिश परस्ती बंद कर दी, तो ये लफ्ज नमाज उन्होंने जारी किया। अरब लोग नमाज नहीं कहते, सिर्फ हम पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी
इसको नमाज कहते हैं। आप इंडोनेशिया में जाओ तो वहाँ भी नमाज कोई कोई बोलते हैं, मगर सारी दुनिया के अंदर जैसा कि मोरक्को से लेके आप इधर तक आओ, मिस्र तक और इजिप्ट के अंदर अलावा ये जो अरब ममालिक हैं इसमें सब सलात है, नमाज का लफ्ज नहीं है। तो सलात का मतलब है दुआ मांगना। आप अरबी जबान की जो कामूस उसकी यानी कि डिक्शनरी का नाम है अल कामूस, आप देखो तो सलात का मतलब क्या है? खुदा से दुआ मांगना। हमने अरबी लफ्ज दुआ बना दिया अपनी नमाज के लिए, और अब दुआ का लफ्ज कुरान पाक में है, ये अरबी लफ्ज है। तो खुदा ताला की तारीफ में हम लोग अदब से खड़े होते हैं और फिर हम उसकी तारीफ करते हैं। हम अभी दूसरी दुआ पढ़ ली तो हम खड़े हो गए, खड़े होके हमने उसको याद किया, जिक्र किया, तस्बीह निकाली, बैठ गए। ऐसा ही सुबह जब भी हमारी दुआ पूरी होती है हम खड़े हो जाते हैं और हम दुआ मांगते हैं। तो ये जो खड़े होके दुआ मांगना है ये भी एक नमाज है। हम सुबह 2 नमाजें पढ़ते हैं, मगरिब के वक्त 2 नमाजें पढ़ते हैं और एक खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। 5 नमाजें हमारी होती है। हालांकि अल्लाह ताला ने 5 नमाजों का जिक्र कहीं भी कुरान पाक में नहीं किया। उसने ये कहा है कि दिन के जो 2 छेड़े हैं, सिरे हैं, सुबह और शाम, और एक पौर रात चली जाए तो तुम उस वक़्त खुदा ताला की सलात करो। बस अकीमुस्सलाह व आतू ज़कात, अपने सलात दुआ को कायम करो और 10 बराबर करो। तो मैं आपको ये कह रहा था कि भाई सुबह हम चौगड़िए पढ़ते हैं, विनती के गिनान पढ़ते हैं, शाम को भी इसी तरह से हम खुदा ताला की हमद व सना करते हैं। तो जिस तरह से दिन शुरू होता है हम इबादत करते हैं, जिक्र करते हैं, रात शुरू होती है तो हम जमात खाने में आते हैं, जिक्र करते हैं, खुदा को याद करते हैं। ऐसा ही जब एक हफ्ता वीक पूरा होता है और दूसरा चालू होता है तो हम उस वक्त खुदा ताला की तारीफ करते हैं। इस्लामी नजरिए से हफ्ते का पहला दिन जो है वो शुक्रवार है, जुमे का दिन है, और जुमे की स्टार्टिंग जिसको आज हम जुमेरात कहते हैं, थर्सडे, शाम को 6 बजे से दूसरी शाम को 6 बजे तक एक दिन होता है। इस वक्त जो सारी दुनिया में जो कैलेंडर है वो रात को 12 बजे डेट चेंज होती है। आज 31 तारीख है, 30 है, 31 है, आज 31 तारीख है। 1998 आज पूरा होता है रात को 12 बजे। और मैं आपको इस मौका के ऊपर नए साल की मुबारक देता हूँ। मौला आपकी खुशियों में बरकत में इजाफा करे, आपके रोजी रोजगार में बरकत है, आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे। तो रात के 12 बजे डेट चेंज होती है, लेकिन इस्लामी कैलेंडर से शाम को 6 बजे डेट चेंज होती है, 6 घंटे पहले। तो इस वक्त जुमे का दिन हो गया। ये जो जुमेरात के शाम को 6 बजे, इस वक्त जुमा है। पहले रात आती है, फिर दिन आता है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। और कल जुमा है, लेकिन शाम को 6 बजे हफ्ते का दिन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमको सदरुद्दीन ने फरमाया जुमेरात को, यानी शाम को 6 बजे के जुमे का दिन शुरू हो गया, हम चौगड़िया पढ़ते हैं। जिस तरह सुबह उगती है, दिन शुरू होते वक्त हम खुदा की तारीफ करते हैं, रात शुरू होती है हम उसकी तारीफ करते हैं, हफ्ता शुरू होता है हम उसकी तारीफ करते हैं, महीना शुरू होता है तो हम चंद रात को उसकी तारीफ करते हैं, बरस पूरा होता है तो हम नवरोज के दिन खुशियां मनाते हैं। हमारा ये तरीका है। चौगड़िया इमाम की तारीफ के लिए है, उसके पास से बरकतें लेने के लिए है। लेकिन एक और चीजें भी हैं। इन चौगड़ियों के अंदर छोटी छोटी चीजें भी हमारे सदरुद्दीन ने लगा दी।
جیسے کہ اسی چوگڑیے کے اندر ایک پاٹ ہے، یار متا کوئی آکھے تس دن ویراتامو جیو متا سیانا سو۔ اے بھائیو، اے دوستو، خیال کرو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن حساب کتاب جب یہ ہمارا ہوگا تو ہم مولا کو کہیں گے یا مولا میں نے نہیں سنا تھا۔ مولا پوچھے گا تم نے پڑھی؟ مولا میں نے نہیں سنا تھا، متا کوئی آ کے تیس دن، خبردار اس دن تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ متا سیانا سو، میں نے نہیں سنا۔ ہمارے سامنے ہماری زندگی کی فلم لے آئی جائے گی کہ جس میں ہمیں سب کچھ دکھایا جائے گا کہ میں سنیما میں بیٹھا ہوں اور جماعت خانے نہیں گیا، پھر کیا کہیں گے یا مولا یہ غلط ہے؟ کیونکہ خدا نے کرامن و کاتبین ہمارے ساتھ لگائے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے کرامن کاتبین اس کے ساتھ ہوتے ہیں، دو فرشتے ہیں، ہماری نیکیاں اور ہماری بدیاں لکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کو قرآن شریف کے اس کرامن کاتبین کا انگلش ترجمہ ہے آنریبل ریکارڈرز، یعنی عزت مآب ریکارڈ کرنے والے۔ یہ دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری بدیاں لکھتے ہیں، ہماری نیکیاں لکھتے ہیں۔ رائٹ سائڈ کے اندر جو ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ میں ہے وہ ہماری بدیاں لکھتا ہے۔ یہ رائٹ اور لیفٹ میں نے کہاں سے نکالا؟ قرآن میں سے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن تمہارے ہاتھوں میں تمہارا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کو رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور جو گنہگار ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ اس پر سے میں نے کہا کہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہے، اور بدیاں برائیاں لکھنے والا وہ ہماری لیفٹ سائڈ میں ہے۔ اسی لیے ہم کو رسول اکرم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرو تو رائٹ ہینڈ سے کرو، اٹھ کے اگر چلتے ہو تو پہلے رائٹ فٹ لگاؤ، تاکہ تمہارے اندر یہ عادت پڑ جائے کہ تم رائٹیسنس کے اوپر چلو۔ اور بہت سے ایسے گندے کام ہیں جو ہم لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، رائٹ ہینڈ سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اب وہ بچے کے جو لیفٹسٹ پیدا ہوتے ہیں ان کو نبی صاحب نے کہا ان پہ زور مت دو، مگر یہ ضرور کہو کہ کم از کم اچھے اعمال رائٹ ہینڈ سے کرنے کی عادت ڈالیں۔ اے مومنوں، اسی چوگڑیے کے اندر ہم کو ایسے بھی باتیں کہیں کہ نور شاجو گتیے میں ورسیو، جماعت خانہ گت ہے، اور گت کا مطلب ہے سنسکرت زبان میں کہ جہاں جا کے ہم کو پناہ ملے۔ کیسا اچھا لفظ ہے! اس کا ترجمہ یہ ہے شرنے جوانی جگہ، شرنے جگہ جوانی جگہ، جہاں ہم کو جا کے پروٹیکشن ملے اس جگہ کو گت کہتے ہیں۔ جب ہم شام کو صبح جماعت خانے میں آتے ہیں تو یہ حضرت امام کا گھر ہے اور یہ گت ہے، تو جب ہم گت میں آتے ہیں ہمیں پناہ ملتی ہے، بلاؤں آفتوں سے پناہ ملتی ہے، بدیوں برائیوں سے پناہ ملتی ہے، ہمارے خیالات کے اندر تفریق ہو جاتی ہے، بدیاں برائیاں الگ ہو جاتی ہیں، بدیوں کی سمجھ آتی ہے، اسی طرح نیکیوں کی سمجھ آتی ہے، اور یہی سمجھ ہم کو اپنی زندگی میں کام آتی ہے۔ جماعت خانے میں آ کے جب ہم گنان سنتے ہیں، جب ہم فرمان سنتے ہیں، واضح سنتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے رائٹ اینڈ رانگ کی، اور رائٹ اینڈ رانگ کی سمجھ کا نام ہی دین ہے۔ دین یہ ہے کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، اور رائٹ کیا ہے اس کی سمجھ ملنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ رائٹ ہے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی طرح سے رانگ کیا ہے اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ جب انسان کو رائٹ رانگ کی سمجھ آتی ہے تبھی ہم بدیوں برائیوں سے دور ہوتے ہیں۔ جب ہم دور ہوتے ہیں گناہ کم ہوتے ہیں۔
नेकियां ज्यादा होती हैं। हमारी पुरानी जो दुआ थी, इस शमस के जमाने से चली आती थी, फिर सदरुद्दीन ने उसको अच्छी तरह से अरेंज किया। बाद में मौलाना अली शाह माँ बाप ने उसके अंदर 14 दाने याली के, 14 सलवात के ये 2 तस्बीहां इंट्रोड्यूस की। और मौलाना अली शाह माँ बाप जब इमाम बने तो पीर शाहबुद्दीन शाह ने उसके अंदर थोड़ा सा और डाल दिया, नाद अली डाली और शहीद ये रूहें के रसालन की दुआ डाली। फिर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने थोड़ा फर्क किया। इस दुआ के अंदर एक दुआ थी, दुआ मांगो नियत खैर जी, इलाही तू खैर करिए, आखिरत जो खैर करिए, मां हित यानी अभी, मान यानी फ्यूचर में, हित मान खैर करिए, 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए। 24 घंटे के अंदर 8 पहर है और उसमें 64 घड़ियां हैं, हर पहर में 8 घड़ियां हैं। जब अभी सदरुद्दीन ने कैसे कमालात किए, 8 पहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए। वाटे घाटे राह मुसाफरी हैं, यानी जो आदमी ट्रेवलिंग कर रहे हैं वो वाटे घाटे जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, राह मुसाफरी है जो मुसाफरी कर रहे हैं, राहियां दरगाहें पंजे भाई हैं, इश्कदारी हैं, वो लोग के जो हाजिर इमाम के काम के ऊपर मौला के हुजूर में बैठे हुए दरगाही हैं और राही हैं, यानी कि सफर करके इमाम की खिदमतें करते हैं मिशनरियों की तरह, और जो पंजे भाई हैं कि जमात खाने के अंदर आके मिलते हैं और जो हाजिर इमाम से मोहब्बत रखते हैं, इन सब के लिए खैर करिए। कैसी अच्छी दुआ नियत खैर, इलाही तो खैर करिए, आखिरत जो खैर करिए, हितमान खैर करिए, दिनों दुनिया में खैर करिए। 8 पहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए। वाटे घाटियां दरगाहें पंजे भाइयां इश्कदारियां, जुमले जमात जो खैर करिए, सारी दुनिया की जमात जो खैर करिए, आले नबी औलाद अली जो खैर करिए, हज़रत इमाम के घर वाले हैं वो आले नबी औलाद अली हैं, आले नबी औलाद अली जो खैर करिए। याली रखी जालिम जे जुल्म कना, याली रखी शर शैतान कना, याली रखी तिनी कना जिन्हीं के तोजी समझाए ना। मैं ये रोज दुआ पढ़ा करता हूं। फिर उन्होंने जो हमको ये दुआएं दी हैं, उन दुआओं के अंदर दिन और दुनिया की सारी चीजें आ गई। तो राइट एंड रॉन्ग, खैर को राइट कहते हैं, शर को रॉन्ग कहते हैं। आप कुरान शरीफ पढ़ो, सब कुरान पाक में यही बताया गया है, खैर क्या है, शर क्या है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है। ए मोमिनो, दीन का यही काम है कि हमें पता लगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अपनी जिंदगी के अंदर, बिजनेस में, घर में, खाने पीने में, हर काम के अंदर राइट ढूंढो, राइट क्या है, और अल्लाह से दुआ मांगो, ए मौला बाबा तू मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं हक पे रहूं, किसी का हक न खाऊं, ना हक काम न करूं, ना हक न सोचूं। मजहब सिर्फ तस्बीहें निकालने का नाम नहीं, ऊंचा नीचा सर करने का नाम मजहब नहीं, जिसको हम सजदा कहते हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाया कि अगर सिर्फ सर ऊंचा नीचा करने का नाम ही सजदा है तो एक मुर्गी तो हजारों सजदा करती है, दिन के अंदर चोंच मारती रहती है। यहां तो समझदारी की चीज है कि हमको ये पता लगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है। शाम का वक्त है, कोई बहुत बड़ी गाने वालों की पार्टी आ गई, लोगों ने बड़ी तारीफ की। कोई गैर इस्माइली दोस्त आया, अरे मैं टिकटें लाया हूं, चलो हम उधर चलो, आपके दिल में थोड़ी सी बात बनी, खुदा न करे बने। जमात खाने तो रोज जाते हैं, कभी एक दिन ना गए तो क्या हुआ, तो जमात खाना छोड़ा, चले गए उस पार्टी के अंदर। लेकिन कभी ये सोचे होते हैं कि
क्या जमात खाना उस पार्टी से नीचा है? क्या मैं उस गाने वाली की पार्टी में जाऊं, उसका दर्जा दुआ पढ़ने से ज्यादा है? अगर ये सोचो तो आपका दिल खुद गवाही दे देगा, नहीं नहीं, पहले मैं जमात खाने जाऊंगा, टाइम होगा तो उधर चला जाऊंगा। लेकिन जमात खाना कुर्बान करके हम उधर चले जाए। दुनिया की यही बातें हैं जो आज की इस दुनिया के अंदर, कि जिस दुनिया के अंदर शैतान का जोर बेहिसाब है। शाम को जमात खाने आने से अगर हमारा दिल सुस्त हो गया तो जान लो कि कोई आफत आने वाली है। मौला का घर छोड़ के हम दूसरों के घरों में गए। मैं अपनी बातों में बार बार रिपीट करता हूं एक चीज जो मुझे अच्छी भी लगती है और मेरी आदत के खिलाफ है। मैं एक चीज बहुत ज्यादा रिपीटेडली नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूं इसलिए कि इमाम ज़मान ने नैरोबी में आए, भरी हुई जमात देख के खुश हुआ मौला, फरमान किए, बहुत राजी हुआ। मुखी ने कहा मौला मैं आपको एक खुशखबरी सुना। ऐसा सब मुड़ गए मुखी की तरफ। यस मुखी। मुखी बोले मौला एक खुशी की बात यह है कि आजकल जमात की हाजिरी बहुत अच्छी है। ओह, मौला इतना खुश हो गया कि उसी वक्त खड़े होके माइक के ऊपर फरमान करता है मौला। मौला कहता है मेरे मुखी ने मुझे कहा, मौला फरमाया मेरे मुखी ने मुझे कहा कि जमात की हाजिरी बहुत अच्छी हो गई। मौला कहते हैं मुंह लाल लाल हो गया। मैं इतना खुश हुआ हूं, इतना खुश हुआ हूं कि ऐसी खुशी मुझे और कोई चीज में नहीं मिली। तुमको जमात खाने आते हुए सुन के ऐसी खुशी मुझे किसी और चीज में नहीं मिली। अब मौला का मुंह ढीला हो गया, उतर गया। लेकिन जब मैं ये सुनता हूं कि तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है। मौला ने लफ्ज दिया हर्ट। मुझे इतना हर्ट होता है, दुख होता है कि इससे ज्यादा दुख मुझे कोई चीज में नहीं मिलता। हाजिर इमाम को हम दुख देने के लिए उसके मुरीद बने हैं। शाम को हमारी जॉब है, हमारा बिजनेस है, ठीक है। जॉब वाले तो मजबूर हैं क्योंकि जिसकी जॉब शाम को है, लेकिन सुबह भी जॉब होती है। जो किसी मजबूरी या बिजनेस की वजह से शाम को नहीं आ सकता, दिनदारों सुबह को आओ। ऐसे भी लोग हैं कि जिनका दिल दुखता है शाम के वक्त। दारुसलाम में मौला आए, मेहमानियां कबूल कर रहे थे। एक आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ चला आया, आगे आगे हाथ जोड़ा। मौला ने दुआ आशीष दी। अभी उसके दिल में था कुछ ना कुछ। मौला उसके मुंह में उंगली डालते हैं, क्या काम करते हो? उसको मौका मिल गया। कहते मौला मैं रेलवे इंजन ड्राइवर हूं। ऐसा? अब आंखों में से आंसू आए। मौला पूछे क्या बात है? कहते मौला 15 दिन मेरी ड्यूटी रात को होती है, 15 दिन को होती है। जब ड्यूटी रात की होती है मैं जमात खाने नहीं आ सकता। मौला ने हाथ रखा, कोई बात नहीं, जो कि बहुत बड़ी जोखिमदारी है, लेकिन फिर भी इंजन चलाते चलाते दुआ पढ़ लो, मैं तेरी दुआ कबूल करता हूं। कहते मौला के गरज है, क्या है? खुदा आप दुआ करो कि मेरी रात की ड्यूटी निकल जाए तो मैं रोज जमात खाने आऊं। मौला खुश हुए, फरमाया मैं दुआ करता हूं। महीने के 1.5 महीने के बाद उसकी ड्यूटी बदल गई। बहुत खुश हुआ। जमात खाने आके एक इलाही खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। जमात खाने में आने वाले जो रूहें और फरिश्ते हैं वो हमें दुआएं देती है, हमारे ऊपर सलाम भेजते हैं। इन फरिश्तों की दोस्ती होती है और ये फरिश्ते हमें दुनिया के अंदर भी कभी कभी मदद करते हैं। मोटर चलाते चलाते जोर से ब्रेक लगाई, एक्सीडेंट होने ही वाला था, बच गए। क्या पता किसी फरिश्ते ने हाथ रख दिया। ये छोटी छोटी ऐसी
غلطیوں کے اندر، حادثوں کے اندر ہماری مدد کرتے ہیں۔ جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے۔ آپ کو ادھر کا گورنر آپ کو بولے آج شام کو میرے گھر آنا، تو آپ کتنے ٹھیکڑے مارو گے، کتنے خوشی ہوگے، گورنر نے مجھے انوائٹ کیا۔ ارے زمین و زمان کا شہنشاہ آپ کو کہتا ہے میرے گھر آؤ۔ اور جب بھی حضرت امام کہتے ہیں نا جماعت خانے کے لیے، تو ایسا نہیں کہتا وین یو گو ٹو جماعت خانہ، گو کا شبد نہیں کہتا، وین یو کم ٹو جماعت خانہ، کیونکہ اس کا گھر ہے۔ جب بھی تم جماعت خانے آتے ہو میں خوش ہوتا ہوں۔ ایسا نہیں کہتا وین یو گو ٹو جماعت خانہ آئی ایم ہیپی، گو کا لفظ نہیں کہتا، وین یو کم ٹو جماعت خانہ، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے، وہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے، اور ہم تو اس کے روحانی بچے ہیں، ہمارے گھر میں آنا فرض بھی ہے، اور اپنے روحانی ماں باپ کی خدمت کے اندر ہم جب آتے ہیں تو مومنوں ہمیں نوازشیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ اس میں خاص طور پہ جو صبح کی حاضری ہے اس کی تو بہت بڑی عظمت ہے، وہ نور کا وقت ہے۔ اس وقت ساری دنیا ارد گرد 1000 میل اس طرف 1000 میل اس طرف 1000 میل کے چکر کے اندر لوگ سوئے ہیں، صبح 4 بجے کتے بھی سو جاتے ہیں۔ وہ ایسا وقت ہے کہ انسانیت جو ہے وہ غفلت میں پڑی ہوتی ہے، مگر اس وقت خدا کے فرشتے اور روحیں دنیا کے اندر ان لوگوں کے پاس کے جو خدا کے بندے اور پیار کرنے والے ہیں اللہ کو، ان کو جگاتے ہیں۔ صبح جماعت خانے کی جو حاضری ہے وہ نورانی چیز ہے۔ شام کی حاضری میں ہمیں دنیا ملتی ہے، عاقبت بھی ملتی ہے، لیکن صبح کی حاضری میں دنیا بھی ملتی ہے، عاقبت بھی ملتی ہے، اور نور کی بخششیں ملتی ہے۔ صبح کے وقت اٹھ کے اپنے پیدا کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، نیند چھوڑ کے، جو ہمیں برا لگتا ہے نیند کو چھوڑنا، لیکن آپ نے کبھی ایسا کیا کہ مولا کی خاطر آپ نے نیند چھوڑی تو بہت راضی ہوتا ہے۔ نور ویلا نور پیو کریو من آنند جی، نور ویلا نور پیو کریو من آنند جی، پوپ ویلا راکھو پیر سو سبند جی، تم جاگو 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 بھائی ابن بہانیاں جی۔ اٹھو صبح کے وقت، رات جا رہی ہے، یہ نور کا جو وقت ہے وہ نورانی وقت ہے۔ اے مومنوں، ہم مسلمان ہیں لیکن طریقتی مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ اسماعیلی ہے۔ عام مسلمان نماز پڑھ لیتے ہیں، ہو گیا پورا، برس میں تھوڑے سے روزے رکھ لیے، وہ کہتے ہیں ہمارا دین پورا ہو گیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں یہ مسلمان ملک ہے، موروکو دیکھا، الجیریا دیکھا، ٹیونیشیا دیکھا، دنیا کے تمام مسلم ممالک دیکھے میں نے، لیکن افسوس نمازیں پڑھتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دنیا بھر کے گناہ مسلمانوں میں موجود ہیں۔ کیسا اسلام، کیسا اسلام؟ آپ کے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسلام ہے کدھر؟ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا، مطلب کہ خدا کی مرضی کے اوپر عمل کیا جائے۔ کیا قرآن پاک نے ہمیں نہیں سکھایا کسی کا حق نہ کھاؤ، قتل نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور اس قسم کی بدیاں برائیاں اللہ تعالیٰ نے خوب ہم کو کہہ دی ہے؟ مگر اے مسلمانوں،
क्या कहूँ आपको, मौला रहम करे इस्लाम और नबी की उम्मत के ऊपर। मुसलमान जितनी शराब पीते हैं, शराब बनाने वाले भी इतनी शराब नहीं पीते। बदियों बुराइयों की तरफ हमारा ध्यान पड़ा है। एक चीज जो गलत तरीके पे है कि अल्लाह है ना गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह जब्बारों का हार भी है, गैरो गजब करने वाला भी है। और हम हर रोज अपनी नमाजों में यही पढ़ते हैं कि हिदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको उस रास्ते पे चला, सीधी राह के ऊपर, कि जिन रास्तों पे चलने से तूने उन पर नियामतें उतारी, अनाम तो अलैहिम। और फिर हम कहते हैं मौला उस रास्ते पे हमको चलने से बचा कि जिस रास्ते पे चलने से उन पर तेरा गजब उतरा। हम ये दुआ पढ़ जाते हैं लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्माइली मुसलमान तरीकत में हैं, शरीयत से ऊंचे हैं, और हमारा इमाम हमारे साथ हर वक्त है। हम अपने इमाम का दीदार भी करते हैं और उसकी हिदायत पाते हैं। सुबह की इबादत जो इस्माइली मजहब के अंदर है, थोड़ी सी सूफियों में जरूर है, लेकिन हमारा सारा तरीका सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत के लिए ही है। अलबत्ता शाम को हम आके जमात खाने में दुआ वगैरह पढ़ते हैं, अपने अमाल करते हैं, बहुत जरूरी है ताकि बच्चे भी वो सीख के बड़े हो जाएं। शाम के ये जो जमात है वो एक स्कूल की तरह है कि जहां हम सारी फैमिली को लेके आते हैं, हमारे बच्चे सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मगर चीज खसूसी तौर पे इबादत के लिए है, नूर की पाने के लिए है। और जब हमारे दिलों के अंदर नूर पैदा होता है तो उस आदमी को खुदा की सिफतें मिलती हैं, और खुदा ताला अपने बंदे के ऊपर जिस पे वो राजी होता है अपनी अच्छी सिफतें देता है। उस आदमी के अंदर नेकियां आती हैं, बदियां बुराइयां झड़ती जाती हैं। जो वो आदमी इबादत करता है तैसे तैसे उसके दिमाग के अंदर रूहानी नूरानी बुलंदियां पैदा होती हैं, राइट रॉन्ग का पता लगता है, कल क्या होने वाला है उसको खुदा इशारे करता है। यहां तक कि मेरी मौत कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, और मौत के बाद मेरा क्या होगा, उस आदमी को पता लगता है। ये सुबह की इबादत की गरज से हम लोग भूल चुके हैं, और हमारे अंदर थोड़ी सी हिमाकत आ गई है। हम हजरत इमाम का जाके बोल ले लेते हैं, फिर उस पर अमल करते ही नहीं। यानी कि हमने मौला से फरेब किया, हमने मौला से धोखा किया बंदगी करने के लिए। और मौला पूछते हैं राजी खुशी से आए हो? हाँ साहब। सुबह उठोगे? हाँ साहब। देखो ये सुबह की इबादत हार्ड डिसिप्लिन है, सख्त है, लेकिन फिर भी हम हाँ कहते हैं। फिर भी मौला कहता है अभी भी मेरे फरमान सुनने के बाद कि ये सुबह की इबादत बड़ी सख्त चीज है, ये सुनने के बाद तुम्हारे दिल में ऐसा है कि मैं ये नहीं कर सकूंगा तो तुम उठ के चले जाओ, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कोई नहीं उठता, और फिर मौला से बोल लेते हैं, और जब मौला चले जाता है 8, 10, 15 दिन हम उसको याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब मुझे बताओ हमने हजरत इमाम के साथ कैसी बेअदबी की, गुस्ताखी की, फरेब दिया, चीटिंग किया मौला के साथ। काहे को बोल लेना? आपको किसने कहा कि बोल लो? और अगर हमने बोल दिया है तो फिर क्यों इबादत ना हो गए? खुदा न करे बीमार हो गए हो, उठ के नहीं बैठ सकते, लेटे लेटे इबादत करो, सोफे पे बैठ के करो। मगर जमात खाने अगर आओ तो मेहरबानी करो, पाँव लंबे न करना, एक आसन, एक पोजीशन ढूंढ लो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं लोगों को जमात खाने में लंबे पाँव करके बैठते हुए देखता हूँ। जिस तरफ हम सजदा करते हैं उस तरफ हम पाँव करें। ऐसी बेवकूफी तो मुसलमान जो जाहिल है वो भी नहीं करते। जमात खाने आओ,
अदब से बैठो। जिस तरह आप 1 घंटा बैठ सकते हो वैसा बैठो। 1 घंटे की प्रैक्टिस करने के लिए 5-7 महीने लग जाएंगे। आप इस तरह से बैठो, एक पाँव इधर एक पाँव इधर, जैसे अभी मोस्टली बैठे हैं, या दोनों पाँव या एक पाँव पीछे रख के बैठो, जैसे आपको बैठने में सहूलत हो गई, लेकिन अदब के साथ लंबे पाँव करके नहीं। किसी की कमर दुखती है, दीवार का टेक ले सकते हो, कोई खराब नहीं, मगर अदब से बैठो, क्योंकि मौला के हुजूर में बैठना है। आंखें बंद करो, मौला से अपने गुनाहों की मुआफी चाहो, उसका शुक्राना अदा करो कि हज़रत इमाम की इमामत में मुझे जिंदगी मिली, कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने इमाम का दीदार किया। ऐसी बातें, हकीकत की चीजें मौला से मांगो। 1-2 मिनट मौला के हुजूर में अर्ज करने के बाद आप अपने बोल के ऊपर ध्यान लगाओ। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये वो चीज नहीं है कि आपने खंड की 1 चमची चाय के अंदर घोल डाली तो मीठा हो गया, यानी आप बैठे और आपको दीदार मिल जाए। आप बैठे तो आप आसमान में उड़ने लगो। 10-10 बरस निकल जाते हैं, 15-15 बरस भी निकल जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि सारी जिंदगी उन्होंने इबादत की मगर कुछ न मिला, लेकिन मौत के वक्त मिला। हम जो कुछ करते हैं वो बेफायदा नहीं, भले उस वक्त आपको कुछ नहीं भी मिला, लेकिन क्रेडिट में आ गया। मौला फरमाते हैं कभी कभी तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, न सही, नियत करके इबादत के लिए बैठते हो। मौला कहते हैं ये भी इबादत है। नियत करके इबादत के लिए बैठना भी इबादत है। अरे नियत करके जमात खाने आओ घर छोड़ के, ये भी इबादत है। लेकिन हमारा जो इस्माइली तरीका है वो सुबह की इबादत का नाम है। बाकी तो अभी हम बैठे हैं, शाम के वक्त आते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि शाम की जो जमात है वो एक स्कूल की क्लास है कि जहाँ हम सब आके अपना मजहब सीखते हैं, फरमान सुनते हैं, दुखीनान सुनते हैं, वाज़े सुनते हैं। इससे हमको हमारे मजहब की इल्म तालीम मिलती है। लेकिन हकीकती चीज वो है सुबह 4 और 5 बजे के दरमियान इबादत करना। तो ये मैं आपको अर्ज कर रहा था कि शाहजहाँ दीदारी श्रेवर सेवक मगर श्रेवर, ये कोलोकियल लैंग्वेज है। सेवक का मतलब खिदमतगार, मुरीद, श्रेवर का मतलब भी वही है। मौला के जो दीदारी गुलाम, जो मौला के बच्चे हैं, मुरीद हैं, इस दिन कहते हैं जुगा जुग, हर जमाने के अंदर होते हैं। लेकिन लॉटरी किसको लगती है? जस तिन्ही के मोमने के, कि जिन्होंने ये भेद समझा। बैतुल ख्याल का भेद समझने वालों को जस कहते हैं कामयाबी, जो कामयाब हुआ। सुबह की इबादत आदमी को दीदारी बनाती है, उसमें नेक अमाल आते हैं। क्योंकि अगर दिल की कुर्सी के ऊपर हमने दुनिया बिठा रखी है तो मौला आके कहाँ बैठे? कुर्सी खाली करो तो बैठे ना। दुनिया की ममता, दुनिया की मोह, दुनिया का लालच, झूठ बोलना, गुनाह करना, फरेब करना, बदनजरी करना, तमाम गुनाहों के अंदर लूटे पटे हैं। नूर कैसे मिले? साफ पाक बन के जब हम मौला के पास जाए तब उसके नूर की बख्शिश दे दे। सुबह उठो, जिंदा रहो, और छोटी उम्र से अपने बच्चों को सिखाओ कि सुबह उठ के पहले दुआ पढ़े। छोटी उम्र से बच्चों को दुआ की आदत डालो और अपनी भी आदत डालो। किसी दिन लेट हुए कोई बात नहीं, मगर सुबह दुआ पढ़नी चाहिए। इलावाजी अपनी फैमिली के अंदर सलवात की एक तस्वीर 40 दाने के निकालने की आदत डालो। जितनी भी छोटी उम्र से बच्चा दरूद शरीफ पढ़ सकता है, भले 3 दफा पढ़े, 2 दफा पढ़े, लेकिन जैसे जैसे बड़े होवे 40 दाने की एक तस्वीर, और थोड़ा और बड़ा हो जाए तो 101 दाने की तस्वीर सलवात की रोज पढ़ा करो। एक सुबह पढ़ो, एक सोने से पहले पढ़ो। सलवात क्या है? आप रास्ते चलते चलते किसी को हो सलाम अलैक,
تو وہ بھی آپ کو سلام کا جواب تو دے گا نا، اور بزرگ ہوگا تو سلام کا جواب بھی دے گا اور دعا بھی دے گا۔ اب ہم محمد کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، ہم آل رسول اہل بیت اماموں کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سنا تو کیا چپ رہیں گے؟ وہ بھی سامنے ہم کو دعا دیں گے۔ صلوات پڑھنے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ محمد اور آل محمد پہ صلوات ہو گئے، یعنی سلامتی ہو گئے۔ تو جب ہم ان کے لیے یہ عرض کرتے ہیں تو سامنے اس کے بدلے میں ہم کو سلامتی ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں۔ ایک صلوات کی تصویر صبح ایک شام کو ہر روز نکالو اور اپنی اولاد کو سمجھ دے رسول کی شکریتی بنائے، فرمان بردار مومن بنائے، ہر نیک امید پوری کرے، بدیوں برائیوں سے گناہوں سے بچاتا رہے، شیطان اور شیطان کے فریب سے ہمیں بچاتا رہے۔ مولا آپ کو آپ کی اولاد کا ایمان سلامت رکھے، ایمان زیادہ کرے، عزت آبرو مال و دولت حقیقتی سمجھ حلال کی روزی زیادہ کرے۔ مولا آپ کو خوشیاں دے، برکتیں دے، نوازشیں دے، نعمتیں دے، رحمتیں دے، سکھیا باد